Hello everyone, welcome to all of you. Because of lockdown, we suffer much, mostly our studies suffer most. At present, schooling education is not possible, so that this is the online platform where we can continue our studies. So, okay, let's begin. This is the 7th class English first lesson, and title of this lesson is three questions. Three questions. You can hear three questions. Okay, three questions. Before you read, we can read this line. The king has three questions and he is seeking answer to them. What are the questions? Does the king get what he wants? Once upon a time there was a king and want to seeking his questions, and this is the three question. How much? How many? This is the different. How much and how many? How many question? How much is the quantity and how many is the numeral? Three questions. What are the question? What are the questions? Does the king get what he wants? क्या राजा को मिले जो वो चाहता था? Okay. And the title of this lesson is three questions. This is the story, especially a moral and recommended story. Many students know and have heard about it. And this story, three questions, title represent about three questions, which is very important. And the king who wanted to know the answer of these questions, that would never fail, because he want to know, because he want to, that he would never fail. The questions were: what is the right time to begin something? What is the right time to begin something? Second question: which people should he listen to? Which people should he listen to? Third question: most important thing for him to do. Most important thing for him to do. Okay, let's begin. Three questions. The thoughts came to a certain king that he would never fail if he knew three things. एक राजा के दिमाग में कुछ बात आ जाती है. वो सोचता है कि अगर उसे तीन चीज़ें प्राप्त हो जाए, तीन चीज़ों का आंसर प्राप्त हो जाए, तो वह कभी फेल नहीं हो सकता. दिस थ्री थिंग्स वर, ये तीन चीज़ें क्या थी? व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग? फर्स्ट क्वेश्चन. विच पीपल शुड ही लिसन टू? सेकेंड क्वेश्चन. व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू? सबसे सही समय क्या है किसी चीज़ को चालू करने का? कौन से लोग हैं जिनकी बातें उसे सुननी चाहिए? और सबसे इम्पोर्टेंट वर्क या वस्तु कौन सी है जो उसे करना चाहिए? तो फर्स्ट क्वेश्चन इज टाइम, सेकेंड पर्सन, एंड थर्ड इज बिजनेस. द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर थ्रू आउट हिज किंगडम, promises a large sum of money to anyone who would answer these three questions. इसलिए राजा ने अपने मैसेंजर इस दूत, मैसेंजर्स को भेजा अपने राज्य में और प्रॉमिस किया कि जो भी इनके आंसर दे देगा इन तीन क्वेश्चंस के, उसको एक बहुत अच्छी मनी दी जाएगी. मैनी वाइज मैन केम टू द किंग बट दे ऑल आंसर्स इस क्वेश्चन डिफरेंटली. बहुत सारे वाइज मैन वहाँ आए, उन्होंने सबने डिफरेंट आंसर्स दिए. In reply to this first question, some said the king must prepare a timetable and then follow it strictly. लोगों ने कहा कि सबसे पहले राजा को एक टाइम टेबल बनाना चाहिए और उसे स्ट्रिक्टली पालन भी करना चाहिए. Only in this way, they said, could he do everything at its proper time. यही सबसे अच्छा तरीका है जिसे राजा सब काम समय पे कर सकता है. Others said that it's impossible to decide in advance the right time for doing something. ये दूसरों ने कहा कि ये तो इम्पॉसिबल है कि पहले से ही निश्चित करना कि कौन सा समय सबसे सही है, और हम डिसाइड नहीं कर सकते. द किंग शुड नोटिस ऑल डैट वॉज गोइंग ऑन. राजा को सब चीज़ें देखनी होती हैं जो भी राज्य में घटित हो रहा है. अवॉइड फॉलिश प्लेजर, इस मूर्खता वाली बात को छोड़कर
एंड ऑलवेज डू वट एवर सिम नेसेसरी एट दैट टाइम, और उसे वह करना चाहिए जो उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरी लगता है. येट अदर सेड दैट द किंग नीडेड ए काउंसिल ऑफ वाइज मैन who would help him act at the proper time. दूसरे ने कहा कि राजा को एक वाइज मैन की काउंसिल बना लेनी चाहिए जो कि राजा की हेल्प करे प्रॉपर टाइम निश्चित करने में. उन्होंने इसके पीछे रीज़न दिया बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट्स इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन. क्योंकि प्रत्येक काम को सही समय पे करने के लिए हमें दूसरों की ज़रूरत होती है. अकेला इंसान कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकता है प्रॉपर रूप में. बट देन अदर सेड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट. अब लोगों ने उन्होंने कहा कि ऐसा भी हो सकता है कि कई बार क्या होता है कुछ चीज़ें अर्जेंट करनी पड़ जाती हैं. दिस थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल. इसके लिए काउंसिल्स का इंतज़ार नहीं कर सकते कि वो हमें आकर सलाह देंगे तब राजा टाइम के अकॉर्डिंग काम करे. In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future. हमें डिसाइड करने के लिए सबसे सही टाइम कौन सा, इसके लिए हमें फ्यूचर की ज़रूरत होती है, यानी फ्यूचर देखना होता है. एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट. परंतु फ्यूचर को तो केवल मैजिशियंस ही देख सकते हैं. द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियन. इसलिए राजा को किसके पास जाना चाहिए? मैजिशियंस के पास. इन दियर आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन. अब सेकेंड क्वेश्चन के आंसर के लिए जो एक वही क्वेश्चन था अपना कि प्रॉपर पर्सन हु इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट. सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर. काउंसलर सबसे ज़्यादा होते हैं. काउंसलर कौन होते हैं? यहाँ पर आपको दिखा रखा है काउंसलर कौन होता है. मेंबर ऑफ द काउंसिल, जो कि उस सभा में बैठते हैं, सभासद इसे बोलते हैं ना. अदर सेड द प्रिस्ट, कोई कहता है पुजारी. ए फ्यू अदर चूज द डॉक्टर, डॉक्टर को कहते हैं कि डॉक्टर सबसे ज़्यादा. एंड येट अदर सेड दैट सोल्जर वर द मोस्ट नेसेसरी, और कुछ कहते हैं उसके सैनिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो डिफरेंट हो गया सारा ओपिनियन. कोई कह रहा है कि काउंसलर, कोई प्रिस्ट एंड अदर डॉक्टर एंड अदर सोल्जर. डिफरेंट आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन, द बिजनेस. ओके, सम सेड साइंस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. अदर चूज फाइटिंग, येट अदर रिलीजियस वर्शिप. कोई कहता है साइंस, कोई कहता है लड़ाई, और कोई कहता है रिलीजियस वर्शिप, यानी धार्मिक पूजा पाठ राजा के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी काम है. एज द आंसर ऑफ हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवार्ड. राजा के तीनों क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल अलग अलग होने पर राजा बिल्कुल संतुष्ट नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने किसी को रिवार्ड भी नहीं दिया, इनाम. इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ ए सर्टेन हेरमिट who was widely known for his wisdom. इसके अतिरिक्त राजा ने क्या किया? एडवाइस लेने की किससे? हर्मिट. हर्मिट कौन होते हैं? देखिए हर्मिट यहाँ पर है. हर्मिट, ए पर्सन हु लिव्स अलोन एंड लीड्स ए सिंपल लाइफ. एक ऐसा इंसान जो कि अकेला रहता है और बिल्कुल सिंपल लाइफ जीता है. हर्मिट कहते हैं साधु. उसने सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए? हर्मिट की सलाह लेनी चाहिए, जो कि हम पूरे राज्य में बहुत ज़्यादा बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता है. द हर्मिट लिव इन ए वुड विच ही नेवर लेफ्ट. हर्मिट एक जंगल में रहता था जिसे वह कभी नहीं छोड़ता था. अब आप सोचिए क्यों नहीं छोड़ता था? क्योंकि वह कहीं जाता नहीं था. राजा नहीं तो अपने महल में बुला लेते. ही सन नो वन बट सिंपल पीपल. वह केवल यानी देखना नहीं होता, मिलना. ओके, यहाँ वह केवल सिंपल लोगों से मिलता था. एंड सो दैट किंग पुट ऑन ऑर्डनरी क्लॉथ. ऑर्डनरी क्लॉथ उसने पहने. बिफोर ही रीच द हर्मिट, हर्मिट के पास पहुंचने से पहले द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विथ हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन. राजा ने अपने हॉर्स बॉडीगार्ड के पास रखे और अकेला चल दिया. एज द किंग केम नियर द हर्मिट हट, जैसे ही राजा हर्मिट के हट यानी झोपड़ी के पास आया, ही saw the hermit digging the ground in front of his hut. जैसे ही वो उसके पास आया, उसने देखा कि जो हर्मिट है वो डिग कर रहा है ग्राउंड को, यानी एक गड्ढा खोद रहा है अपनी झोपड़ी के सामने. ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यू डिगिंग. राजा को अभिवादन किया और डिगिंग करता रहा. द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक. बहुत वृद्ध था और कमज़ोर था. एज ही वर्क ही ब्रीथ हैविली. और जब वो काम कर रहा था तो लंबी लंबी सांसें ले रहा था. द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड. हर्मिट के पास गए और कहा, आई हैव
कम टू यू वाइज हरमिट। वाइज हरमिट, मैं आपके पास आया हूँ, आई टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन के आंसर जानने के लिए। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग्स एट द राइट टाइम, मुझे कैसे पता चलेगा या मैं जानना चाहता हूँ कि सबसे सही टाइम कौन सा है कोई चीज़ करने के लिए। वो आर द पीपुल आई नीड मोस्ट, कौन से लोग हैं जिनकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। एंड वाट अफेयर आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और कौन से काम मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिडंट स्पीक, हर्मिट उसकी बातें सुनता है पर कुछ नहीं बोलता। ही वेंट ऑन डिगिंग, और खोदता रहता है। यू आर टायर्ड सेड द किंग, राजा ने कहा आप शायद थक गए होंगे। लेट मी टेक द स्पैड एंड वर्क इन योर प्लेस, आप ये स्पैड मुझे दे दीजिए और आप वर्क इन योर प्लेस, मैं आपके स्थान पर काम करूँगा। स्पैड होता है खोदने का, जो होता है ना कुल्हाड़ा वगैरह, कोई भी जो। थैंक्स सेड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा थैंक्स। गिवन द किंग हिज स्पैड देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, राजा को स्पैड देने के बाद में वह ग्राउंड के पास में बैठ जाता है। व्हेन द किंग हैड डग 2 बेड्स, जब राजा 2 बेड्स खोद लेता है, बेड्स क्यारियाँ होती हैं। ही स्टॉप एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन, वह स्टॉप हो जाता है और वापस अपने क्वेश्चन पूछता है, रिपीट करता है। द हर्मिट गैव नो आंसर, और जो हर्मिट था वो कोई आंसर नहीं देता, बट स्टूड अप, खड़ा हो जाता है। स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पैड, स्पैड उसके हाथ से खींच लेता है यानी छीन लेता है। एंड सेड नाउ यू आर रेस्ट एंड लेट मी वर्क, अब तुम बैठो मुझे काम करने दो। बट द किंग डिडंट गैव हिम द स्पैड एंड कंटिन्यू टू डिग, राजा उसको नहीं देता है और कंटिन्यू खोदता रहता है। 1 hour पास एंड देन अनदर, 1 घंटे के बाद मुझे दूसरा घंटा निकलता है, यानी घंटे पे घंटा निकलता है। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्री, सूर्य जो है ट्री के पीछे चला गया, नहीं सेट डाउन हो गया। एंड एट लास्ट द किंग स्ट्रक द स्पैड इन टू द ग्राउंड एंड सेड, किंग जो रहता है अपना स्पैड नीचे ज़मीन पर रखता है। एंड सेड आई कैम टू यू वाइज मैन, मैं यहाँ आया हूँ वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन, मेरे क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम, इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, अगर तुम मुझे कोई आंसर नहीं दे सकते तो मुझे बता दो, आई विल रिटर्न होम, मैं घर चला जाऊँगा। हेयर कम समवन रनिंग सेड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा देखो तो कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। अब यहाँ आपके पास कंप्रहेंशन चेक है, आपको कितना इसमें समझ में आया। फर्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड द किंग वांट टू नो आंसर द 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन के आंसर क्यों जानना चाहता था। तो आप देखिए आपकी फर्स्ट लाइन ही ये बता रही है आपको, देखिए यहाँ पे आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं। देखिए द थॉट केम टू इट सर्टेन थिंग दैट ही वुड नेवर फेल, सो he would never fail. Okay, this is the answer of our first question. Okay, question is that why did the king want to know answer to 3 questions, क्यों जानना चाहता था, because he would never fail, want to never fail. Okay, message were sent throughout the kingdom, messenger ने क्या संदेश भेजा पूरे साम्राज्य में, to fetch wise men, to find answer to the question, to look for the wiser man, to announce a reward for those who could answer the question. I think you guessed the right answer. I think okay, you are right. Okay, this is the right answer. Okay, this is the right answer. Okay, then second chapter is open. This is the different from this, because the first is ending with here comes someone running, कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। अब देखिए कौन दौड़ता रहा है, यहाँ इस सस्पेंस को क्लोज कर देंगे। द किंग टर्न अराउंड एंड सा ए बियर्ड मैन रनिंग टुवर्ड्स देम, राजा मुड़ता है, उसको देखता है कि एक बियर्ड मैन होता है दाढ़ी वाला इंसान, दौड़ता हुआ उसकी तरफ आ रहा है। हिज हैंड वाज प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक पे उसका हाथ जो है उसको पकड़े है, यानी जो उसके हाथ है स्टमक को पकड़े हुए हैं। फ्रॉम विच ब्लड वाज फ्लोइंग, उसके वहाँ से खून बह रहा है इसलिए उसने पकड़ रखा है। व्हेन ही रीच द किंग ही फेंटेड मीन्स यहाँ आपको दिख रहा हो फेंटेड, लॉस्ट कॉन्शियसनेस यानी बेहोश होना।
अपना होश खो देना, एंड फॉल टू द ग्राउंड, और ग्राउंड पे गिर जाता है। द किंग एंड द हर्मिट रिमूव द मैन क्लॉथ एंड फाउंड ए लार्ज वाउंड इन हिज स्टमक। राजा और हर्मिट दोनों क्या करते हैं, उसके कपड़े निकालते हैं और वहाँ देखते हैं कि स्टमक पे एक बहुत बड़ा क्या हो रहा है, घाव सा हो रहा है। द किंग वॉश एंड कवर्ड इट विथ हिज हैंकरचीफ। राजा उसको धोता है और उसको अपनी हैंकरचीफ से क्या करता है, कवर कर देता है। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग। खून तो है कि बहुत ज़्यादा बहता जा रहा, रुक नहीं रहा। द किंग रीड्रेस द वाउंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप। राजा जब तक उसको रिड्रेस करता है, नहीं उसकी पट्टी बदलता रहता है जब तक कि खून बंद नहीं हो जाते। कहने का मतलब एक तरह से उपचार करता है उसका। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। बहुत अच्छा महसूस करता है और वो उसे कुछ पीने के लिए मांगता है। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गैव इट टू हिम। राजा फ्रेश वाटर लेके आता है और उसको देता है। बाई दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल। इस समय जो है सूर्य छिप चुका होता है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। द किंग विद द हर्मिट हेल्प कैरीड द वाउंडेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड। राजा और हर्मिट उसको वाउंडेड मैन को अंदर ले जाते हैं एंड लेड हिम ऑन द बेड, और उसको बेड पर लिटा देते हैं। द मैन क्लोज हिज आइज एंड ले क्वाइट। अपनी आंखें बंद करता है और आराम से लेट जाता है शांति से। द किंग ट्राइड बाय हिज वर्क एंड टू वर्क ही हैड डन। राजा जो है बहुत ज़्यादा थक गया है क्योंकि वो चल कर आया है, और वर्क ही हैड डन, और जो उसने काम किया उसकी वजह से बहुत थक गया है। ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट। लेट जाता है ज़मीन पे और वो सो जाता है पूरी रात। व्हेन ही वर्क, जब वो जागता है, इट वॉज द सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेंबर। उसको बहुत टाइम लगता है याद करने में। वेयर ही वॉज, वह कौन है, एंड वो द स्ट्रेंजर बियर्ड मैन लेइंग ऑन द बेड वाज। और ये जो बियर्ड मैन है, स्ट्रेंज कौन है ये जो लेटा हुआ है। फॉरगिव मी सेड द बियर्ड मैन इन ए वीक वॉइस व्हेन ही सा डैट द किंग वाज अवेक। जब देखा गया कि राजा जग गया है तो कोई इंसान है जो वीक वॉइस में बोल रहा है। अभी कौन इंसान आप समझ गए, बियर्ड मैन। ओके, तो बियर्ड मैन एक छोटी सी बारीक आवाज़ में कहता है फॉरगिव मी, मुझे क्षमा कर दे। वो इंतज़ार कर रहा था कि राजा कब जगे, उसको भाई उसकी हेल्प की थी ना राजा ने, इसलिए। आई डोंट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर। मैं तुम्हें नहीं जानता और तुम किसके लिए मुझसे क्षमा मांग रहे हो, सेड द किंग। राजा ने कहा मुझे नहीं पता तुम किसके लिए मुझसे क्षमा मांग रहे हो। यू डोंट नो मी बट आई नो यू। आप मुझे नहीं जानते पर मैं आपको जानता हूँ। आई एम डेट एनिमी ऑफ योर वो स्वॉर रेवेंज ऑन यू। मैं वह आपका शत्रु है जिसने आपसे रेवेंज यानी बदला लेने का श्योर ओके दिस। इसका मतलब क्या होगा, मैंने शपथ ली थी आप बदला लेने की। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज माई प्रॉपर्टी, क्योंकि आपने मेरे भैया को मृत्युदंड दे दिया था एंड मेरी प्रॉपर्टी जो है सीज कर दी थी। सीज यानी हड़प लेना जल। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी डैट हर्मिट। मुझे पता था कि तुम अकेले ही जा रहे हो हर्मिट से मिलने। एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम। और मैंने अपना माइंड बना लिया था, नहीं मैं निश्चित कर लिया था कि तुम जब घर की तरफ वहाँ वापस आओगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। बट द किंग पास एंड यू डिड नॉट रिटर्न। पर पूरा दिन गुजर गया, तुम नहीं लौटे। सो आई लेफ्ट माई हिडिंग प्लेस। तो मैं अपना हिडिंग प्लेस छोड़ दिया। एंड आई केम अपॉन योर बॉडीगार्ड। और तुम्हारे जो बॉडीगार्ड है उसके पास आया। वो रिकॉग्नाइज मी एंड वाउंडेड मी। उसने मुझे पहचाना और उसने मुझे घायल कर दिया। आई एस्केप फ्रॉम हिम। मैं उससे बचकर भागा। बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वाउंड। मैं मर चुका होता अगर तुम मेरी सहायता नहीं करते तो। आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव माई लाइफ। मैं तुम्हें मारना चाहता था और तुमने मेरी लाइफ बचा ली, यानी मेरी ज़िंदगी बचाई। नाउ आई लिव। अब मैं ज़िंदा हूँ। आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन टू डू द सेम। फॉरगिव मी। आई विल सर्व यू। मैं तुम्हारी सेवा करूँगा और बहुत ही अच्छे वफादार सर्वेंट की तरह। और मेरे पुत्रों को भी मैं कहूँगा ऐसा ही काम करने के लिए। फॉरगिव मी, मुझे क्षमा कर दो। पर आप द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विथ
हिज एनिमी सो ईजिली। राजा बहुत खुश था कि इतनी आसानी से उसने अपने शत्रु को से शांति स्थापित कर ली थी। एंड टू हैव वोन हिम ओवर एज ए फ्रेंड, और उसे जीत लिया है एज ए फ्रेंड, अपने मित्र, यानी क्योंकि उसका मित्र बन गया था। ही नॉट ओनली फॉरगेव हिम बट सेड ही वुड सेंड हिम हिज सर्वेंट एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम। न केवल उसने उसे माफ़ी किया बल्कि ही वुड सेंड हिज सर्वेंट, उसने अपने नौकरों को और अपने डॉक्टर को भेजा ताकि उसकी अच्छी देखभाल हो सके, क्योंकि वो वाउंडेड था। एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, वादा किया कि मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी दूंगा। लिविंग द वाउंडेड मैन द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक राउंड द हमिट। वाउंडेड मैन को छोड़कर राजा बाहर आया हट से और हर्मिट को ढूंढने लगा चारों तरफ। बिफोर गोइंग अवे ही विश वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चन, जाने से पहले वह चाहता था कि उसके क्वेश्चंस का आंसर मिल जाए। द हर्मिट वाज ऑन हिज नी शोइंग सीट्स इन द बेड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर। हर्मिट जो है अपने घुटनों के बल उन बेड्स में शीट बो रहा था जो कि एक दिन पहले तैयार किए गए थे, जो गड्ढे खोदे गए थे। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, हर्मिट के पास राजा जाता है एंड कहता है, फॉर द लास्ट टाइम आई बैग यू टू आंसर माई क्वेश्चन वाइज मैन। लास्ट टाइम मैं आपसे अपने क्वेश्चंस के आंसर जानना चाहता हूँ वाइज मैन। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड सेड द हर्मिट। हर्मिट ने कहा तुम्हें तो पहले से आंसर मिल चुके हैं। स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम। वह अभी भी अपना काम चालू रखा है सेड बोलने का, एंड लुकिंग अप उसकी तरफ देखता है जो कि उसकी तरफ पास में आकर खड़ा है। हाउ है आई बिन आंसर्ड, मुझे कैसे आंसर प्राप्त हो गए। वाट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है मुझे कैसे आंसर प्राप्त हो गए, मुझे तो नहीं मिले आंसर। डू यू नोट सी रिप्लाइड द हर्मिट, क्या तुम नहीं देखते। हर्मिट ने कहा, इफ़ यू हैड नोट पिटिड माई वीकनेस yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. अगर तुम मुझ पे पिटी यानी पिटिड सेकेंड फॉर्म, अगर तुम मुझ पे दया नहीं दिखाते मेरी वीकनेस पर कल, हैड नॉट डग दिस बेड्स फॉर मी, तो तुम मेरे लिए ये बेड्स नहीं बनाते। एंड वुड हैव गॉन अवे, और तुम्हें जाना पड़ता। देन दैट मैन वुड हैव अटैक यू एंड यू वुड हैव विश यू हैड स्टेड विथ मी, और ये इंसान जो है तुम पे आकर अटैक करता और तुम फिर विश करते कि मैं तो वहीं रह जाता, आता ही नहीं तो अच्छा होता। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज वैन यू वर डिगिंग द बेड्स, तो सबसे अच्छा जो इम्पोर्टेंट टाइम है वो था जब तुम ये बेड्स खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, मैं तुम्हारे लिए उस समय सबसे अच्छा इंसान था क्योंकि मैंने तुम्हारे आंसर नहीं दिए। एंड जो तुमने डू मी गुड वाज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और जो तुमने मेरे लिए काम किया नहीं गड्ढे खोदने का, वह तुम्हारा सबसे अच्छा काम था। आफ्टरवर्ड व्हेन द मैन रैन टू अस, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, जब वह इंसान दौड़कर आया और जब तुमने उसकी सेवा की। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस इज वाउंडेड ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विथ यू, अगर वह इंसान नहीं आता और तुम उसकी चर्या नहीं करते तो वो मर जाता और तुम उससे शांति वार्ता नहीं कर पाते। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, तो सबसे अच्छा टाइम तो वो था जब तुमने उसकी उपचार किया, और सबसे अच्छा इंसान वो है जो दौड़ कर आया था, इम्पोर्टेंट मैन वो है। एंड वाट यू डिड फॉर हिम वाज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और जो तुमने उसके लिए किया वो सबसे अच्छा तुम्हारा कार्य है। रिमेंबर देन, ये ध्यान रखो, देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पोर्टेंट एंड दैट टाइम इज़ नाउ, सबसे इम्पोर्टेंट टाइम जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है वह है दैट टाइम इज़ नाउ, अब, आज, यानी अब जो हम हैं वही सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट, क्योंकि इसलिए है सबसे इम्पोर्टेंट क्योंकि इस समय ही हम कुछ करने की ताकत रख पाते हैं, ना ही तो फ्यूचर का पता है, हमें कुछ पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन who are with at a particular moment, सबसे नेसेसरी जो पर्सन है वो है वह इंसान जो कि उस समय तुम्हारे साथ है, पर्टिकुलर मोमेंट में जो तुम्हारे साथ है। फॉर नो वन नोज व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, क्योंकि कोई नहीं जानता कि फ्यूचर में क्या होगा। एंड वेदर वी विल मीट एनी वन
एल्स, और हम किसी फ्यूचर में किसी इंसान से भी मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे। द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू दैट पर्सन गुड, और सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस जो था हमारे लिए वह है उस पर्सन का लिए अच्छा करना, ठीक है। बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड दैट पर्पज अलोन, क्योंकि हम इस दुनिया में आए हैं, इस संसार में आए हैं किसी निश्चित पर्पज को लेकर, ओके। तो then the three question and the three questions answer is in this textbook. Leo Tolstoy is the good writer and he wrote most of the stories which is well learned, and this is the stories three question I think you read and you understand very well. Three questions. First question time, second question person, and third question is important thing, and the answer is only now. The correct answer is the present time and present people and present work is the important thing for us. This is the pictures, okay. So okay, you read it and I think you understand better, okay. Goodbye.